میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور میری پیاری بہن اس وقت شاکرہ شیف شاکرہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کو بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یوم ولادت بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت جب بھی لگا کے ہو جاتا. اور آپ کو آج اچھا سب گھروں میں نظر و نیاز ہو رہی ہے, اور نظر و نیاز سے میں اسی بات کو مد نظر کہ میری بہن نے شاکرہ نے اسپیشلی میٹھے کا جو اہتمام کیا ہے, اور ویسے ہی زبان پہ مٹھاس ہی مٹھاس ہے تو کیوں نہ میٹھا ہو. تو یہ ذرا سا ڈفرینٹ میٹھا کیا بن رہا ہے آج شاکرہ بتائیں گے. لبِ شیریں بنا رہے ہیں ہم. تو لبِ شیریں کے لیے پہلے ہم کسٹرڈ بنائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے انگریڈینٹس بتا. ہاں میں انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. ایک دودھ ہو گیا اس کے اندر. اس کے لیے میں نے 1 لیٹر دودھ لیا ہے, ہاف کپ شوگر ہے, ٹھیک ہے, اور 4 ٹیبل اسپون میں نے کسٹرڈ پاؤڈر کو میں نے گھول لیا پانی. ٹھیک, پہلے سے ہمیں معروف کسٹرڈ پاؤڈر. جی کیا بات ہے جی, معروف مسالوں کی تو. اچھا ان کے اندر ہے کسٹرڈ, میٹھے میں بھی بڑی زبردست. اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس. اچھا اس میں جب کسٹرڈ تیار ہو جائے گا تو ہم اسے ٹھنڈا کر کے پھر اس کے اندر ہم جیلی اور یہ سارے اس کے اندر کنڈیمنٹس جائیں گے. اچھا یہ سب آپ نے پہلے سے کٹنگ کی ہوئی ہے؟ نہیں یہ کٹنگ آتے ہیں, سلائسز آتے ہیں. اچھا پہلے سے آپ چنکس آتے ہیں. اوکے. اور آپ گھر میں بھی ویسے اگر نہیں, ہاں گھر میں بھی کر سکتے ہیں آپ. ہول لے کے پائن ایپل لے لو آپ, پپیتا وغیرہ لے لو, اور جو بھی آپ اسٹرابریز وغیرہ آپ گھر میں بھی فریش بھی لے. یہ فروٹ کاکٹیل کا ٹن تھا, وہ میں نے ہاف ٹن لیا ہے. اچھا مکسنگ. اور یہ جیلی ہے. گڈ ہے. آپ نے کیوب کی شکل میں کر دیا. جی میں نے کیوبس کر دیا. اور یہ کلر سویاں ہیں, اس کو میں نے بوائل کر لیا. اور یہ چاکلیٹ چپس ہیں. ٹھیک ہے جی, سب چیزیں ریڈی ہوں. بسم اللہ کریں. سب سے پہلے جو ہے میں کسٹرڈ بنا رہی ہوں. سب سے پہلے اس کے لیے میں نے یہ ہاف کپ شوگر ہے, اور یہ 1 لیٹر میرے پاس جو ہے یہ دودھ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ میں ہاف کپ شوگر ڈال کے ڈیزالو کروں گی. دودھ میرا ابل گیا فرام اسکلسٹن. اور میں تمام اپنے آف کورس کچن ہمارا ایک خاص اسپانسر سے جو ہے وہ مل کے بنتا ہے, اور بڑا زبردست ہو جاتا ہے. اور سب کی محبتوں کا, پیار کا, اور اسپانسرز کا بہت شکریہ. گلیم گیس اسپیشلی تھینکس, آپ کا جو ہے آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی کہ آپ کے پاس کچن اپلائنسز ہونے چاہیے, اور دی بیسٹ ہونے چاہیے. جس طرح ابھی میں گلیم گیس کی بات کر رہی ہوں, اور ان کے اسٹیل اسٹوو ہمارے پاس موجود ہے, وی آئی پی زبردست. اور اسکلسٹن سے میری بہن آئی ہیں, اور معروف مسالے ان کا بھی لاجواب ذائقہ ہے. آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا جی. اچھا یہ انہوں نے کہا مکس اس لیے کسٹرڈ پاؤڈر ہے 4 ٹیبل اسپون. ونیلا کسٹرڈ لیا ہے میں نے. دودھ نہیں گرے گا, دودھ چینی ڈلی ہے. میں ذرا ڈری ہوں. دودھ اوکے آنے لگا یہ. اوکے, میں اس میں ابھی یہ کسٹرڈ ڈال کے اس کو گاڑھا کر لوں. ہلکے ہلکے اس کو مکسنگ کریں تاکہ یہ اس کے لمس یعنی گٹیاں وغیرہ نہ بن جائیں. ہلکے ہلکے اس کو مکس کریں. کتنی دیر میں بن جاتا ہے؟ بس یہ 5 منٹ میں تو ریڈی ہے. واہ, یہ گاڑھا ہو جائے گا اور یہ کسٹرڈ ٹھنڈا کریں گے. کیونکہ ہم لوگ اس لیے آج ذرا جلدی, کیونکہ آج تو دن بھی اتنا خوبصورت ہے, اور میٹھے کی بات ہو رہی ہے, اور مٹھاس کی بات ہو رہی ہے, تو ہم چاہیں گے ہم پہلے بنائیں تاکہ ہم افطاری کے ٹائم اسے کھا سکے. آپ کے گھر میں سب بچے ہوں گے, وہ لوگ کہیں گے سبھی باجی آپ ہمیں. اچھا کس کس کو چاہیے تو مجھے بتا دیں, میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں اور یہ ڈش لے کر آ جاتی ہوں. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آج امام حسن مجتبی علیہ السلام کا آج یوم ولادت ہے, اور میرے دسترخوان پہ آپ لوگ بھی ہوں گے, تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی نا. تو پھر میں آ جاؤں گی, آپ لوگ آ رہے ہیں, آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, اور کچھ بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی آہستہ آہستہ شاکرہ جو ہے وہ وسک کر لیا میں نے کہ لمس نہیں بنے اس کے اندر. اور یہ ریڈی ہے جی, یہ ریڈی ہے کسٹرڈ. بہترین. اب اس کو ہم ڈش آؤٹ, اس کو نہیں ابھی ڈش آؤٹ نہیں کروں گی, اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے. اس میں کریم ایڈ کروں گی. چولہا میں نے بند کر دیا ہے, چولہا بند کر کے اب میں اس میں کریم ڈال رہی ہوں. اوکے 2 ٹیبل اسپون تقریباً یہ کریم. ٹھیک ہے, 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر یہ کریم ڈالیں. ٹھیک ہے, گڈ ہے. اچھا اس کے لیے لبِ شیریں کے لیے کسٹرڈ کا ٹھنڈا ہونا شرط ہے. اچھا تو یہ کسٹرڈ تو میں نہیں یوز کر پاؤں گی کیونکہ یہ بھی ٹھنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں ایک بنا کے پہلے سے ریڈی کیا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا, شارٹ ٹائم کو سیو کرتے ہو. یہ لیجیے آپ اس کو یہاں سے اس کو کر دیجیے, اور وہ ہٹا لیجیے, اس سائڈ لے جائے, کوئی مسئلہ نہیں جی. اتنی پیارے پیارے کلرفل یہ دیکھ رہی ہوں میں, اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے. اچھا رنگ ہے نا, رنگ بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ میں نے کسٹرڈ پہلے سے بنا لیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈال دیں گے. میں اس سے پہلے مکسنگ کروں گی, پھر ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے, پھر مکس نہیں ہوگا نا الگ الگ. لبِ شیریں. اچھا اس میں پہلے تو میں یہ سویاں ہیں میرے پاس, کلر سویاں میں نے بوائل کی ہوئی ہیں. اوکے, یہ انہوں نے اس میں ڈال دی. اس سے لے لو, اس سے مکس کرنا ہے. اس سے مجھے زیادہ لگ رہی تو میں تھوڑی سی اس میں سے
वो जो दूसरा कस्टर्ड है ना, मुझे आपने हाँ, बनाया वो वो इसमें इसमें डाल डाल देंगे। देंगे। बचाती रहना बहन, बचाती रहना। रोजे में मेरा तो दिमाग अच्छा चल रहा, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना। उस जो गरम गरम छोड़ा है ना, हाँ, ये उसको सब काफी इसमें टाइम डाल- लगेगा ठंडा ठीक होने है में। ठीक है, अच्छा, फिर भी हम खाएंगे। चलें ठीक है। इसमें ये फ्रूट कॉकटेल का मैंने ठीक है। हाफ टिन डाला है। और हम जमा कर रहे हैं इस वक्त, हमारी सारी चीजें जमा हो रही हैं। ये रेड चिली है, ठीक है थोड़ी सी मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी बचाऊंगी। ठीक, ओके डन इट हो गया, गुड हो और गया, ये चॉकलेट चिप्स हैं। ठीक है। इसमें वो छोटी वाली चमचम आती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो छोटी वाली चमचम, हाँ छोटी कलर अरे चमचम हाँ, होती है, ठीक 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 ठीक, वो बहुत अच्छी लगती है इसमें, लेकिन वो मैं मिली नहीं मुझे, तो मैं ओके ठीक है। बस इसको मिक्स करेंगे। वाओ लुक एट दिस, नाइस। अभी ग्रीन नहीं डली या एंड में? ये ग्रीन में थोड़े से डालूंगी, ज्यादा ऊपर से सजावट ठीक। के लिए बचा लूंगी। प्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने छोड़ दिए हैं। वाओ जबरदस्त, दैट्स गुड। हम एक डिश बना दे बस, फिर हो गया। हाँ मैं बस मिक्स कर लूँ इसको, ठीक है। मिक्स हो गया। ये मिक्स हो गया। ये कितना इजीएस्ट है, बहुत आसान है ये, सिर्फ चीजें थोड़ी सी वो पहले से बस prepare- ठंडी होनी चाहिए ठीक इसके लिए शर्त है, वरना ये कस्टर्ड अच्छा। पानी छोड़ देगा। ये देखिए अभी जी, ये देखिए अब नाज़रीन आपको नजर आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि एक बार फिर देख लीजिए, देखिए लुक एट दिस, और ये देखिए क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, बस साथ साथ मिक्स ज़्यादा thick नहीं हो custard। अभी हम इसमें शिफ्ट करेंगे। हाँ इसमें मैं हाफ इसमें डाल दूंगी, हाफ दूसरे बोल में अच्छा डाल थोड़ा दूंगी। सा इधर हो जाओ मेरी शहजाद, ऐसे ताकि नजर आए, ठीक है। गुड हो गया, वेरी गुड। बस इसको साइड पे वहाँ ले जा, वहाँ ले जा, ये मुझे दे जी। राजी ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इन्होंने सब चीज़ें जितनी इंग्रेडिएंट्स थी सब मिक्स कर दिए। अब हमारे पास क्या है, अब इसको बस डेकोरेट करना है। ये रह गया, वो टिश्यू पेपर वहाँ से हटा दो, ठीक है, गुड हो गया, ठीक है जी, बेहतरीन। थोड़ी सी विप क्रीम है, मैंने विप करके रखी हुई थी। अच्छा वही वही, ये वो कैमरा है ना, अच्छा। इजीएस्ट आपका ना नजर, लोग देख रहे हैं तो इसको ब्राउन में कर देती ना, और नहीं अच्छा जाता? नहीं येलो है तो उसके साथ वाइट अच्छा लगेगा, अभी रेड ग्रीन सारे कलर्स आएंगे इसके ऊपर। शेफ शाकरा है फ्रॉम स्किल्स्टन, और ये खूबसूरत मीठा, बेहतरीन, और कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इसको फूल भी डाल दिए। ये हो गया चॉकलेट की कुछ, ये जी आगे इसके ऊपर, बेहतरीन, ओह सो स्वीट। मैं भी थोड़ा अपना नाम लिखवा दूँ कि मैंने थोड़ी हेल्प की थी। ओके दैट्स गुड, वाओ। थोड़े रेड भी डाल हाँ, देते हैं red भी तो, डाल। ठीक है, मैंने इसमें से ना, वाह ये भी अच्छा लगेगा ना, वाह एक बीच में। हाँ बीच में। बस आपकी मर्जी, आप जिस तरह हाँ आपको जिस तरह सजाना चाहें आपको आप अच्छा सजा लगता है इस तरह आप इसको सजा सकती हैं। यस चलो जी, अब क्या है? सी jelly और ओके इसमें होनी चाहिए जबरदस्त, और क्या रह गया? ठीक है जी, ये देखें जी, खूबसूरत डिश रेडी हो गई है। नहीं नहीं सही है, इट्स ओके, यहाँ पे ही रहने दो, ये इधर से ही यहाँ पर कैमरे में जी, ओके। अब हमारे पास ये आ गया, अब इसी तरह मैं एक और bowl बना लूँ। एक और बॉल, वो फिर हम बाद ब्रेक में बना लीजिएगा चलें, आप ठीक आराम है, से, सही। ये सब चीज़ें यहाँ से हटा दें। तो जी नाज़रीन ये हो गया है लबशीरी रेडी। और शेफ शाकरा आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ रहे। और कैसे रोजे चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ अच्छे रहा जा रहे हैं रोज़ा जी। बेहतरीन तरह, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत और फरा को कहिएगा सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी ज़रूर। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन वहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनसे मिलवाती हूँ। सायरा आबदी इस्लामी स्कॉलर है। सायरा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको भी बहुत बहुत यौम विलादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया और आपको। आज बड़ा दिन है हमारे लिए, खुशी का दिन है। सबके घर में मीठा नजर न्याज दस्तरखान लग रहे हैं और अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को वसी करे। आज आप अपनी बातों को हमसे क्या शेयर करेंगे? हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मौला की विलादत के हवाले से आपने ये फरमाया कि
मौला की जब विलादत हुई तो किस तरह से लोग खुशियाँ मना रहे थे। मैं इसी उन्वान से ही गुफ्तगू करूँगी कि ये दस्तरखान इमाम हसन की मुब्तदा कहाँ से हुई। पहले तो हमारे लिए जानना है कि 3 हिजरी को मौला की विलादत 15 रमज़ान को होती है, और जब 15 रमज़ान को मौला की विलादत होती है तो इस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मुतारिफ़ करवाते हैं कि जनाब अस्मा बिनते उमैस और जनाब उम्मे ऐमन। ये उम्मे ऐमन कौन है? ये उम्मे ऐमन वही हैं जो जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना के वक्त से ओहदे जनाब आमना से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह के फ़र्जंद यानी कि इमाम हसन, सिबते अकबर, शबीह मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहरे फ़ातिमा और अली यानी गोहरे जिगरे गोलशाह बतूल जो है मौला हसन की विलादत पे जब ये रसूलुल्लाह के सामने लेके आई तो किस अंदाज से लेके आई कि बताया जाता है कि लाल पोशाक के अंदर इनको लपेटा गया। और जनाब अस्मा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जब कोई बच्चे की विलादत होती है तो आम एक औरत को जो मराहिल पेश आते हैं, मैंने जनाब सैयदा के साथ वो उन्वान नहीं देखे, बल्कि मैंने इस बच्चे को भी पाक को ताहिर देखा। मैंने देखा कि हुराने जन्नत जनाब फातिमा तो ज़हरा के पास आई हैं और वो कनीज़ ख़ास आई हैं जिनका जिक्र है कि वो खातून खुसूसी तौर पे जन्नत में दाखिल होंगी। जो 10 बीवियों का हमें जिक्र मिलता है वो जनाब फातिमा के पास इस नवीद को लेके आई कि इमाम हसन की विलादत हो रही। तो आज उम्मत मुस्लिमा सिर्फ इमाम हसन की विलादत को नहीं मना रही, बल्कि उस दौर में हुराने जन्नत भी थी और वो खवातीन भी थी जो कि जन्नती हैं, जैसे जनाब मरियम, जनाब आसिया और जनाब हव्वा और वो तमाम तर खातून जो कि मासूम कहलाती हैं, वो जनाब फातिमा को नवीद इमाम हसन देने के लिए आई। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जब ये जनाब उम्मे ऐमन इमाम हसन को लेके आई लाल पोशाक में तो रसूलुल्लाह ने एक मरतबा वो लाल पोशाक को जो है इमाम हसन के बतन से हटा दिया। अच्छा, किस वजह से हटाया ये जानना बहुत ज़रूरी। कहा उम्मे ऐमन आप जानती हैं कि आप इसको लाल पोशाक में जो है कवर करके लेके आइए, इसकी पोशाक तो जन्नत से आएगी, यानी कि ये जन्नती लिबादा ओढ़ेगा, ये एक आम हस्ती नहीं है। और फिर साथ साथ फरमाया कि अब इसके जो है एक ऐसे जश्न का यानी वलीमे का आगाज़ किया जाएगा जिसकी बुनियाद जो है उम्मत मुस्लिमा में फैज़ और बरकत का बाइस बनेगी, यानी कि दस्तरखान इमाम हसन हकीके के उन्वान से होगा। अब जब इमाम हसन का हकीका किया है ना तो लोग कहते हैं ये हकीका पूरे महीने चला और पूरे मदीने मक्का के लोग आके यहाँ पर इस दस्तरखान पे दावत लेते, यानी उस फर्ज और बरकत से जो है उसका कस फैस करते जिस पे हर तरह के लवाजमात, हर तरह के जो है डिशेस यानी कि जन्नत के खाने ताम जो के आए हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं ये खाना तमाम मदीने वालों को। भाई तमाम मदीने के लोग, तमाम मक्का के लोग इस दस्तरखान से फैज़ हासिल कर रहे हैं। कितना हसीन दस्तरखान है। बस ये हकीका जब हुआ है ना उस वक्त से इमाम हसन का नाम करीम अहले बैत यानी कि ये अली के बेटे, अली इब्न अबी तालिब के बेटे, सखी इब्न सखी के बेटे करीम अहले बैत कहलाए और दस्तरखान इमाम हसन की बुनियाद यहाँ से शुरू हुई। अच्छा, इसी दिन एक खास चीज का जो है यानी कि एक बातिल रस्म का भी किला कमा हुआ। कौन सी बातिल रस्म मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इस्लाम से पहले जब कोई बच्चा मौलूद पैदा होता था तो मौलूद के सर पे खून लगाया जाता था। रसूलुल्लाह ने इमाम हसन की विलादत के सदके में एक ऐसी बातिल रस्म को भी किला कमा करते नजर आते। कहा कि नहीं, इसके सर पे खून नहीं लगेगा, बल्कि एक खास किस्म का तेल जो कहा जाता है जन्नत से आया, हुराने जन्नत लेके आई और इमाम हसन के सर पे लगाया। यानी कि जिस दस्तरखान का आप जिक्र कर रही हैं और आपकी शेफ माशाल्लाह से उस ताम को बना रही है, परवरदिगार आलम इस ताम की बरकत से जो है आपकी तौफीकात में इजाफा करे, आपकी ईमान। ये रमजान का महीना तकर्रुब इलाही हासिल करने का महीना, परवरदिगार आलम आपको ये तौफीकात अता करे कि इस महीने की मानवियत। और मैं खुसूसन यहाँ एक गुफ्तगू करूंगी अपने देखने वाले व्यूवर्स को बताना चाहूंगी, 3 महीने तमाम तर महीनों में सबसे अफजल महीना रमजान का है, लेकिन परवरदिगार आलम 3 महीनों को कह रहा है कि एक महीना जो है मेरा महीना, ठीक है, रजब का महीना मेरा महीना, व शाबान मोहम्मद का महीना है और रमजान
उम्मत का महीना है, जिसमें उम्मत को बख्शता है, और ये वो महीना है कि जिसमें बंदा जो है वो मेजबान है और मेहमान परवरदिगार आलम, यानी कि परवरदिगार आलम के सामने हुजूरी का महीना। इन तीनों महीने के अगर हम निफ्स को देखें, देखिए चांद निफ्स पे कमाल पे होता है, निफ्स पे कमाल पे होता है ना। अगर रजब की निफ्स को देखें तो विलायत अली यानी अली अपना अबी तालिब का जो है वो उन्वान सामने आता है। 3 रजब को अली पैदा हुए, लेकिन आंखें 3 दिन के बाद काबे में खोली जब रसूल अल्लाह की ज़ियारत की है। फिर देखिए हम शबान की 15 निफ्स शबान को हमारे आखिरी इमाम हुज्जत कायम आले मुकाम उनकी विलादत होती है। और ये रमजान जिसको परवरदिगार आलम अपना महीना कह रहा है, तो हसन यानी कि आपने कहा करीम जो है, नाम जो है परवरदिगार आलम का है। परवरदिगार आलम ने अपने लुत्फ से हसन को जो है वो आशना कराया कि ये करीम इब्ने करीम है, ये हसन मुस्तफा है, ये सिब्ते अकबर है, ये हसन है। और इतने हसीन थे कि जब हसन का तारुफ कराया तो तारीख दान इल्म नफ्सियात कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उस पे उनके असरात मुरत्तिब होते हैं जिनकी आगोश में पला हो। वही इमाम हसन है कि जब पैदा हुए तो मौलूद के एक कान में, दाएं कान में रसूल ने अजान दी है और बाएं कान में अकामत दी है। तो जिसकी शख्सियत की बुनियाद रसूल अल्लाह रखे, जिसकी पहली घुट्टी जो है रसूल अल्लाह की ज़बान है, लिसाने रिसालत की जो है वो उससे ताब मिल रहा है, उसके अंदर इल्म की जो कैफियत होगी, इल्मी कैफियत कितनी होगी, यानी कितना हसीन होगा। कहा जाता है सूरत में, सीरत में, किरदार में बेहतरीन इम्तिजाज रखते हैं हसन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कि रसूल अल्लाह भाई शायर कहता है कि अगर बदन को यानी अज़ा को जोड़े तो बदन दिखता है, बदन बनता है, गुल से गुल मिले तो गुलशन बनता है, और सोज और सास को तरतीब दो तो हुस्न अगर कमाल पे पहुंचे तो हसन बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक वाहिद हस्ती हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो मुशाबा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये बड़ी बात है कि पूरी कायनात में इतने सारे अंबिया आए, पैगम्बरान दीन आए, लेकिन किसको ये मर्तबा मिला? इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। और ये नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा शहजादा मौजूद है, जवाद मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। खोल के बैठे हुए डायरी है मेरा शहजादा। क्या सुना रहे हैं आप? अपनी मर्जी से सुना रहे हैं। भला ये कम है क्या अजमत हसन की, क्या बात। भला ये कम है क्या अजमत हसन की, अली के लब पे है, अली के लब पे है मदहत हसन की, भला ये कम है क्या अजमत हसन की। पढ़े जाते हैं बस कौसर का सूरा, पढ़े जाते हैं बस कौसर का सूरा, मोहम्मद देख कर, मोहम्मद देख कर सूरत हसन की, भला ये कम है क्या अजमत हसन की। फलक भी सर उठा कर देखता है, फलक भी सर उठा कर देखता है, अली की गोद में, अली की गोद में कामत हसन की, भला ये कम है क्या अजमत हसन की, भला ये कम है क्या अजमत हसन की। सुभान अल्लाह। जवाद इस मौजूद थे जवाद मेहंदी, और बड़ा प्यारा सुनाया शहजादे। हमेशा इसी तरह अपना आवाज़ सुनाते रहो और इमाम हसन हुसैन और मौला अली अहले बैत सबका जिक्र करते रहो। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, मैं बात करूँगी क्योंकि अभी हम लोग दस्तरखान की बात करें, फिर हमारे पास ज़ाहिर बात है मौला अली, इमाम हसन हुसैन और अहले बैत बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं, ऐसी ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, नेकियां करके दिखाई हैं। और इस वक्त मेरे डॉक्टर भी अभी मेरे साथ होंगे, वो भी गुफ्तगू करेंगे। कलीम साहब, मैं उनसे बात करूंगी, तो ज़रा प्लीज़ कलीम साहब को बुला लीजिए, मैं ज़रा सा मैसेज दूँ और फिर उनसे बात करूंगी। और जब हम नेकियों की बात करते हैं और ज़िक्र की बात करते हैं, और बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने ऐसा कुछ किया है जो आज अगर हम करेंगे तो अल्लाह पाक इस जहाँ में भी उस जहाँ में हमें बहुत हमारे दर्जात बुलंद करेगा। मौला अली
मुश्किल कुशा, उन्होंने बहुत ही आजिज, बेशक मैं कहती हूँ इमाम बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आला मकाम होते, लेकिन उन्होंने हमेशा दुनियादारी में दुनिया को वो कुछ करके दिखाया ताकि उनकी आखिरत आसान हो जाए। झुक के, आजिज़ी से, दे के, कुर्बान करके, अल्लाह का अलम बुलंद करके, वो सब उस तरह दिखाया है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सिखा सके, बता सके, बिल्कुल आजिज से। लेकिन वो आम हस्ती नहीं है, ये ना समझे कि वो हमारी तरह आम हस्ती है, ऐसा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। वो बहुत आला मर्तबा हस्ती हैं, लेकिन हमें इसलिए उन्होंने झुक के, आजिज होके, अपने लबों से, लफ्ज़ों से अदा करके हाथों से सिखाया ताकि हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उम्मती उम्मती उम्मती, वो इसीलिए कि उन्हें पता है कि ये बहुत गुनाहों में जकड़े जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सब ने, इमामों ने, पैगम्बरान दीन या सहाबा ने, बुजुर्गान दीन ने हमें झुक के आजिज होके सिखाया है। और इस आजिज़ी में ही बरकत है, खैर है और आखिरत भी आसान है। और ये क्या क्या है, ये ऐसे है कि हम किसी को देख के, किसी की मदद करके, और कभी कभी अपने आप को कुर्बान करके भी लोगों के लिए आसानी और फलाह दे देते हैं। और मेरे पहले रोज़े से लेकर अभी तक अल्लाह का शुक्र है, मैं एक छोटी सी नेकी सेगमेंट करती हूँ, और उस नेकी सेगमेंट में सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों ने अपना एक हिस्सा मिलाना है, और वो किसी तरह भी हो, चाहे आप वहाँ पे खिदमत खल्क करें, एज अ वॉलंटियर चले जाएं। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल की बात करूँगी, मैं तो उधर का हिस्सा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल, जान, और मैं ये भी कहूँगी, आज रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रहा है, मैं मर जाऊँ, मेरी आंखें अल इब्राहिम वालों को दे दीजिएगा, बाखुदा, शायद मेरा रब कबूल कर ले, मेरी आंखें शायद किसी को चली है, मेरे दिल में पता नहीं आया है। कहते हैं ना, जो मौला अली के नक्शे कदम पे चलेंगे वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। जो इमाम हसन के नक्शे कदम पे चलेंगे, जो भी इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलेंगे, उन्होंने फिर अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा मेरी दुनिया, मेरी उम्मत, मेरे लोग फलाह पा जाए। और बात करूंगी इस वक्त, दो मिनट है, अच्छा मैं बात करूंगी इस वक्त, क्योंकि इन्होंने अली इब्राहिम की बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब भी मौजूद है, लेकिन हमारी एक प्यारी सी बहन मौजूद है, क्योंकि मैं अभी बांटने का जिक्र कर रही हूँ, तो मैं इनकी ज़ाकरा की तरफ चलूँगी, क्योंकि इन्होंने जाना भी है, तो गुफ्तगू है, तो देने लेने की बात है, दस्तरखान की बात है, आप जिक्र कर रही थी, मेरी प्यारी बहन मौजूद है सायरा आबदी। तो ये बताएं कि हम अपने घर में जब दस्तरखान लगाते हैं और जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, तो किस किस तरह, जिसके पास कुछ ना हो वो क्या करे? देखिए, जिसके पास कुछ ना हो ना, तो वो एक पानी को रख कर भी जो है वो किसी की मदद कर सकता है। बांटना है आपको तो आप पानी से सबील लगा लें, सबील लगा लें। और ये तो वो महीना है कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इत्तकुन नार वलाउ बिशक्किन तमर। अगर तुम्हें किसी का रोज़ा खुलवाना है, भाई किसी ने पूछा कि हमारी इस्तात नहीं कि हम पूरा रोज़ा खुलवाएं, इस रमज़ान की बरकत तो है कि खाली इरादा करें कि आपको रोज़ा खुलवाना है, बेशबहा नेमतें आपके दस्तरखान पे खुद आ जाती हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन रसूल फरमा रहे हैं अगर कुछ ना हो तो एक तिमर के दाने से भी खुलवा सकते हो, नहीं तो पानी वलाउ बिशरबतिन मिम्माओ, यानी कि पानी से भी खुलवा सकते हो। तो ये तो एक आपका खुलवाने का। लेकिन यहाँ बात आप इमाम हसन की कर रही हैं, और मेरे पास भी बहुत कम वक्त, इख्तिसार से मुझे गुफ्तगू करनी है। इस दौर में देने के लिए बेहतरीन जो चीज़ है ना, जिसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपका बेहतरीन इखलाक है। एक शख्स जो कि मदीने में आता है और इमाम हसन के सामने उनके बाबा के लिए जो है ऐसे वर्ड इस्तेमाल करता है जो कि एक औलाद के लिए सुनना और बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल है। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते हैं, देखें, इल्मे बसारत भी रखते हैं और बसीरत भी रखते हैं। एक मर्तबा इमाम ने बताया नहीं कि मैं उसी का फर्जन हूँ, उस अली इब्न अबी तालिब का फर्जन हूँ जिसके लिए तुम किना रख रहे हो या इस गुफ्तगू से उनको नवाज रहे हो। भाई जब बोलना शुरू हुआ तो इमाम हसन ने एक मर्तबा सही से सुना, कहा तुम यहाँ मेहमान हो? तो कहा हाँ। कहा अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो मैं तुम्हें खाना देता हूँ, मेरा दस्तरखान है, तुम इस पे खाओ। एक मर्तबा खाना शुरू, कहा अगर तुम मेहमान हो, तुम्हारे पास लिबास नहीं है तो मैं तुम्हें लिबास देता हूँ। भाई करीम इब्ने करीम है।
ایک مرتبہ اس کو لباس کسے نوازا اور پھر کہا اگر رہنے کے لیے تمہارے پاس جگہ نہیں تو میں تمہیں اقامہ دیتا ہوں, اپنا گھر بھی اس کو پیش کر دیا. بھائی جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا جب معلوم ہوا کہ یہ اس علی کے فرزند ہے جس کے لیے اس نے ایسے لفظ کہے تھے, ایک مرتبہ کہنے لگا جب میں یہاں آیا تھا تو میری نگاہ میں علی ابن ابی طالب سے برا کوئی شخص نعوذ باللہ نہیں تھا, لیکن اب جب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو قرآنی آیت سے نوازا. دیکھیں مسلمان تھا, قرآنی آیت سے نوازا, کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے والعافین الغیظ, یعنی کہ ہر ایک انسان جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور پھر جب وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے واللہ یحب المحسنین, پروردگار عالم ایسے محسن کو جو ہے پسند فرماتا ہے. تو جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے تو اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ کر لیں. یقیناً یہ بہترین سبیل ہے کہ پروردگار عالم کے دسترخوان پر آپ اس بندے کو جو ہے پوری معرفت کے ساتھ لا سکتے ہیں. جاتے وقت کہنے لگا یقیناً آپ جانشین رسول ہیں, آپ کا اخلاق بتا رہا ہے کہ جب میں آیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا اور اب میں جب جا رہا ہوں تو میری نظر میں آپ سے بہتر کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تہذین سے منقبت سننا چاہوں گی. اور جی ناظرین, اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میری پیاری بہن اس وقت موجود ہے سائرہ, ان سے بھی گفتگو چل رہی ہے اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, ہم تو آپ کو مبارک دے رہے ہیں. اگر آپ بھی ہمیں کال کر کے مبارک دینا چاہیں, ہمیں بہت خوشی ہوگی. منقبت سنانا چاہیں تو وہ بھی سنا سکتے ہیں, لیکن لائیو کال کیجئے, ہم آپ سے بات ضرور کرنا چاہیں گے. نمبر اسکرین پر موجود ہے, آپ PTCL پہ کال کر سکتے ہیں. تہذین بسم اللہ. جی جو ازل سے بھی پہلے گلے نور تھے, فاطمہ کا کھلانے چمن آ گئے. اتنی خوشیوں بھری آج کی رات ہے, آج سب کے مولا حسن آ گئے. لوح محفوظ میں تھا جو رکھا ہوا, خود خدا نے دیا ہے حسن ان کو نام. عرش تا فرش ہے نور چھایا ہوا, آ رہی ہے صدا اے درود و سلام. جس راحت دلے مصطفیٰ کو ملی, وہ جہاں میں امام زمان آ گئے. اتنی خوشیوں بھری آج کی رات ہے, آج سب کے مولا حسن آ گئے. اور جن پہ نازاں خدا, جن پہ نازاں نبی, جن کو سبزی کبا کا لقب ہے ملا, وہ جو سردار ہیں خلد کے باخدا, آئی ساتھ ان کے ہے رحمتوں کی گھٹا. جس دین نبی کو ملے گی اما, ہے وہ خورشید میرے عمر آ گئے. کتنی خوشیوں بھری آج کی رات ہے, آج سب کے ہے مولا حسن آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری پیاری بہن, آپ کا اور آپ کا بہت شکریہ آنے کا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. جی ناظرین, ہم لوگوں نے ابھی بریک کی طرف جانا ہے, لیکن جاتے جاتے پھر ایک بار پھر تمام امت مسلمہ کو امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت دل سے مبارک ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی چلوں کہ اگر آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں بالکل آپ ہمیں کیجیے, ہم آپ سے بات بھی کریں گے. لیکن یہاں پر ابھی اذان عصر کا ٹائم ہوتا ہونے والا ہے, تھوڑی دیر بعد 1 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے بعد جب میں آؤں گی تو ہم آئیں گے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے اوپر گفتگو کریں گے, چھوٹی سی نیکی پہ بات کریں گے. اور ہمیں بہت کچھ ہمارے جو ہے نبی پیغمبران دین سکھاتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اسپیشل پیکج دیکھیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کا. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ.